testify in front of the committee, and I think whatever decision the committee will take, we all should be acceptable to that. I will also accept it, you should also accept it. You can say it has been alleged, but this proving me guilty like this, I do not think that is correct. Our Indian constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. By media trial, proving me guilty is actually wrong on everybody's part. The experts of government, they will decide. I am very sure that whatever is the truth, whatever it is, it will come in front of the council. That will be public, that will be open to scrutiny. एंड दैट टाइम ऑब्वियसली एवरीबडी विल नो. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश की है, और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है, आई विल डेफिनेटली गिव दैट. मैंने आपको कल भी यही बोला था, मैं आज भी आपको यही बोल रही हूँ कि लेट द एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड, let the experts decide. Obviously I am no one to say, you are no one to say, common public is no one to say. The experts in that specific field, the experts of government, they will decide. I am very sure that whatever is the truth, whatever it is, it will come in front of the council. समिती समोर तुम्ही कधी जाणार आहे? तुम्हाला बोलवलंय का? समिती तुम्हाला बोलवलंय का? मी तेच सांगते तुम्हाला सगळं ऑफिशियल कम्युनिकेशन असतं, हे कॉन्फिडेन्शियल कम्युनिकेशन असतं, त्याच्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही. पण जेव्हा पण तुम्हाला ही माहिती आहे की कमिटीचा निर्णय येईल, दॅट विल बी पब्लिक, दॅट विल बी ओपन टू स्क्रुटिनी, and that time obviously everybody will know. But right now I do not have the right to tell you anything about whatever investigation is going on or whatever the committee has been set up. That is a confidential sort of information and I am nobody to answer you in that matter. मैडम ये जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको और आपके फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? And I think everybody can see whatever is happening, and as I said that I don't want to comment on it because media and the common public are very, I believe in the common public also, I believe in the media also, and I think everybody is that intelligent and everybody knows what is happening, and that is why I cannot comment on it either on positively or negatively, and whatever submission I have, as I said, it will become public later. Speaking of public is asking a very serious question that you have been forging certain documents. It is alleged documentation forgery. However, it is resulting that millions of individuals are affected by such activities. See, our Indian constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. So, by media trial, proving me guilty is actually wrong on everybody's part. So this is a basic right of everybody, every person. You also know any person who is considered guilty in our system is innocent until he is proven guilty. And you can say it has been alleged, but this proving me guilty like this, I do not think that is correct. So whatever my submission is, I will give it in front of the committee and the truth will come. उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है. शी इज ऑन हर वे और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे. उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी. किन हालातों में? क्योंकि काफी दिन से आप लोग ढूंढ रहे थे, किन हालातों में मिली है? वहाँ पे एक होटल में वो पाई गई है और हमने उनको इंक्वायरी के लिए हमारे साथ हमारी टीम उनको लेकर आ रही है. अभी डिटेन हुई है? जी. सर, किस तरह की आगे की क्या प्रोसेस होगी उनको पुलिस स्टेशन? जो भी है, जो भी लीगल एक्शन होगी उनको. ये बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था. यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे YCM हॉस्पिटल ने रिसीव हुआ. उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था. सर, जो विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसमें कितने % अगर होते हैं तो विकलांगता कहा जाता है, और आपने कितने % का उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया है?
बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है तो वो बेनिफिट्स 40% डिसेबिलिटी अगर हो तो ही दी जाती है, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। जो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करता होता है तो ये कितने बार उसका एप्लीकेशन कर सकता है? आपकी तरफ से कितने बार उन्हें ये इश्यू किया गया है और आगे भी उन्होंने आपकी तरफ कभी उसके बारे में डिमांड की थी क्या? एप्लीकेशन का जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद जो रेसिडेंशियल एरिया जो हॉस्पिटल्स को मार्क्ड है उसी हॉस्पिटल में जाके वो असेसमेंट करना पड़ता है। एक बार वो हॉस्पिटल से यूडीआईडी सर्टिफिकेशन इश्यू होने के बाद री अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज अगेन enabled बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है। तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। सर, इस केस में क्या उन्हें फिजिकली वेरीफाई किया गया था? बिल्कुल, वो यहाँ पे हाजिर थी और उनको पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था। क्या डिसेबिलिटी थी उनकी? उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की। लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट थे ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। उसने 2007 में एडमिशन लिया था थ्रू NT3 कैटेगरी ऑफ वंजारी कम्युनिटी। इट वाज साइंड बाय द अथॉरिटीज ऑफ अमरनगर डिस्ट्रिक्ट और उसने 4.5 साल कोर्स किया। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप किया एंड सी लेफ्ट दिस कॉलेज। ओके, जब कास्ट सर्टिफिकेट दिया था रिजर्वेशन के लिए सहूलियत के लिए तब नॉन क्रिमिलेयर उसने कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था, कास्ट वैलिडिटी सबमिट किया था और नॉन क्रिमिलेयर भी सर्टिफिकेट सबमिट किया था। ओके, नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट सबमिट किया था। और उसकी क्योंकि MBBS करना था तो मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे और क्या क्या उसने बताया था? इसमें तो मेडिकली फिट है तो इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिखाई है। कोई भी किसी भी तरह की कोई नहीं। वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे उसमें है मेरे पास सर्टिफिकेट्स है। ओरिजिनल कॉपी नहीं है मेरे पास। हाँ। वो उसको वापस दिए है हमके पास। हाँ, देनी पड़ती है वापस लेकिन सारे सर्टिफिकेट्स।